College, I'd like to invite you to our online interactive session. Welcome, sir. Now, I request Dr. Ajay Sharma, sir, Principal, GGDST College, to address the meet. Hello, everyone. It's indeed a great pleasure to welcome Mr. Syed Nari to SD College. Over a period of time, I know the Mass Comm department has been organizing such type of events, which has been a great learning experience for all the students and faculty alike. And having Mr. Ansari today is naturally a great live event for all of us. Sometime we are not aware of what amount of such discourse has impact with us over a lifetime. But after some time, when the students start discussing that we interacted with this celebrity and ultimately it changed the course of entire life, that type of potential such learner speaker it have. As you are aware of about the college, but even then it's my moral duty to just make aware of our learner speaker of the college. This college is ranked A plus by um, NAC. We are having college with potential for excellence status by UGC. Recently, India Today has ranked us #1 college in private colleges among the private colleges in Northern India. Otherwise, it was ranked in the 15th or 16th in commerce and science stream by India Today. Outlook has also given very good rating to us. NIRF has given us rating from last 6 years. It's a great institution of learning, which is actually only a charitable organization. None of our management draws any salary out of the college funds. And Mass Comm department has recently started up new courses in the both PG and UG level. And hopefully our interaction today will be a great learning experience for all of us. I welcome Mr. Ansari to our college. Thanks a lot. Thank you, Dr. Ajay. Thank you, sir, for your kind words. The theme for today's session is Managing News and Life of Journalists, Challenges and Opportunities. So, managing news and life seems very easy, but I'm sure there must be various challenges. And I'm very confident that today's session will be very interesting and insightful for all the students of journalism. Now I request Dr. Dhruva Jyoti Patil, sir, Dean and Director, ITMI, to cast the light on the theme of the event. Okay. Good morning to all of you present. Honorable President, Mr. Sharma, the President of the GGDST College, Honorable Principal, Dr. Ajay Sharma, the Principal of the College, Madam Dr. Priya Chadha, Mr. Saeed Ansari, my colleague from the India Today group, Madam Zoya, the senior faculty and also an anchor, Mr. Anand, our admission in charge and course in charge for digital media and communication, and my dear students and the faculty member of the college. It's a great privilege to meet you all through a virtual mode, looking at the pandemic time. But I am told by my colleagues that I believe it is more than 7-8 years we have been organizing every year this kind of interaction sessions as a part of what we call CSR activity, corporate social responsibility. Hello. Activities. India Today and India Today group. The core objective of the theme, what we call campus to corporate, objective is to create a more awareness among the budding journalists or the students for that matter, so that they should know more about how media industry or the entertainment industry is operating, what are the nuances, what are the
different kind of, the requirement, the works. So it is not just television. So just to look at India Today Group, our own organization, we are having a radio 104.8 East FM. We have a digital division, and we are #1 in the Asia as far as the digital part is concerned. Our television channel Aaj Tak is any case #1 for last 21 years. We have been leading in India as one of the #1 channel in Hindi. We have the English news channel. We have the publication India Today magazine in English as well as in Hindi. And there are many other magazines like Reader Digest or Business Today, so and so forth. There are many names. So in a short, I can tell you this. So it's a very big group in a sense that we are into all spectrum of mass media and working in day and night to ensure that the gold standard of journalism is maintained. We believe in ethical standard, and also the objective is to communicate the truth and the essence of the life so that the public would be aware of the different aspects of day-to-day happenings, including the different kind of the situations or the circumstantial part. So the today's program, I am very glad that my colleague Mr. Saeed Ansari, who is senior anchor and executive editor also, but I must tell you, you also need to know about him. He is one of the record holder in reading news, and awarded, I believe, more than 20 or 30 national, international awards he has accumulated with his own experiences and the expertise, and longest served news reader in the country. And I mean, the span, you can take any areas, any subject, any aspect. So very learned scholar also indeed. So objective is to sensitizing all of you how the life of a journalist normally that we look at it. It's not just a glamour quotient, but there are a lot of things behind this. So journalism or journalist, it's a great profession, but it has lot of what you call the precautionary process, or let's say prerequisites are there, which you need to imbibe and need to follow also. Otherwise, it can go in a very haywire situation. So today's context or the scenario, journalism or a journalist plays a very big, very vital role, which we will get to listen from Mr. Ansari. Now, coming back, the theme, India Today Media Institute, not only in your college, but then countrywide, we go to many autonomous colleges in the country, from Kashmir to Kanyakumari, and mostly they are all NAC A-grade approved good colleges like yours, and always create more sensitization among students, conducting workshops or the career orientations, understanding about the media and entertainment industry. This is the core objective, so that the student must know how the media industry is evolving, especially in the digital landscape, what are the new changes that are coming, or let's say different roles and the responsibilities, or different facets of managing the entertainment industry. It is not just news, but there are business side of the news as well. And there are called the other entertainment called GEC channel, the news channels, and then you have a radio, or I mean the FM radio is very popular these days, to the different spectrum of digital spectrum, which is very vast and growing. If you look at the last the report by KPMG, so they are talking about 2024, India will be going to be top 4 worldwide, the ranking wise, and our the annual spending in media entertainment industry could cross more than 1,43
1,000 crore rupees. So it's a very big, what do you call, the boost from last 3-4 years. So entertainment industry or media and entertainment industry cumulatively has been doing very good job and doing fine despite even the pandemic times. Of course, print media little bit faces little bit problem in terms of circulation and there are few challenges during pandemic, but I'm sure that the situation is getting normalized. So the print segment also going to gain momentum, but the digital segment is growing at a fastest speed, more than 21% growth, which was being assumed as 19%, but then it has gone far beyond 19%. It is around 21%. So if you look at cumulatively, whole industry part will be approximately 33 to 34% of the annual spending will go to digital part. So the media industry in totality is highly diversified, and each sector, each area is very big in itself and has been doing tremendously well and making a lot of impact to our day-to-day life and bringing a life in a kind of synergy. Like take an example, during pandemic time, all of us are living in a very isolated life. So, we can't go out, and that kind of time, the news channel have played a very big role, sensitizing us, creating awareness. Even our anchors, our reporters, our journalists, I can tell from my own experiences that they have done a tremendous job making their own life risk, but then providing news to us so that we should be aware, informed. So core objective of the essence in, I'll not take much time. So the core concept is that campus to corporate means that today's context, academia cannot sustain without the input from the industry. So the academia industry collaboration is the need of the hour. Skill training, skill-based education, and providing quality input and what industry expects from the academic institutions. So those kind of synergy is very much required. So we thought probably as an industry, we need to go to all top colleges like yours, then to spread that kind of message, educating them or making them aware about the happenings or providing them counseling support. My compliments to Dr. Priya ma'am. She is a great lady indeed, and providing a lot of support and guidance to all of you, all students of journalism, mass communication. Feel fortunate. She is a great leader. She is helping every child, whatever I know, because a couple of students have taken admission in our college as well for the career path. And people called and talk about what few minutes before our principal sir was narrating. Indeed, it's a great college, and your alma maters are always feel proud of that college. Even our sports editor, Mr. Vikrant Gupta, is also from your college. So, there are more than 3-4 people, at least I know of in our, organizations are from your college only. So, good college, good ambience, good learning environment. This is the prerequisites, what exactly a student needs. Or for that matter, what, as an academic institutions, we go much closer to all our students and guiding them, giving them input in a way so that their futuristic career path could be enlightened in a way so that they could see where their strength or the skills sets could be better utilized. So that is the core component of today's program. And I sincerely thanks to the management. They are also very, very supportive and very cooperative. Whatever I could understand, that they are very alert and very conscious about all of your futures. That's a very good thing. And when the management, the principals of the teachers and the entire fraternity is putting their best effort. So as a student, you should feel good. What more you need?
and probably whatever we could help you or we could give you that kind of guidance, we are always ready to support in whatever way it could be possible by us. But we really want you should be a good human being, first of all. That is my concluding part of remark. Be a good human being. Today's context, it is very, very essential. You may get smart job, you can get a big qualification, you can do many things in life, fine, but be a good human being. That is the first and foremost important factor. Second, learn the skill. It is the skill which help you to grow your life. I'm not talking about jobs. I'm not talking about anything in a commercial interest per se. But first of all, you should know your inner consciousness, your strength, your weaknesses, and started working on. The skill that you earn will give you kind of mileage that you aspiring to. So whether you go to an industry or be an entrepreneur, or let's say there are many young people have started, digital startups and incubation centers and all that, fine. But you must know the skill. So that is the second point. Third, be unlearned. So if you are following the path of unlearning, then only your learning phase will start. So all of us are learning. Now, digital age, we are living in a digital age, and you people are called to be the millennials. So all of you agree with me, digital growth has brought a new concept that nobody is knowledgeable today's context. All of us are every day putting our efforts to learn something, update something. And my request is every day make sure before you rest for the day, learn some good things, which you think it will help you to build your personality, or let's say build your career path, whatever you could say. Please learn from smallest thing. And the fourth part is support each other. It is very essential. During pandemic time, we have learned we need to support each other. Sense of belongingness is very, very important. For a media industry, it is very important what we call today, I believe all of you might have studied that paper called cross-cultural communication. We are living in a cross-cultural world. We should know different cultural trait. And of course, as an Indian, we are very proud because we have a big diversity, and we are quite, enjoying that kind of diversity. And it's a big strength for us when you go to the World Forum. Everybody appreciates that every Indian is oriented that way. What we call our Vedic stand, the sloka called Vasudhaiva Kutumbakam. Every world, I mean, the world is my family. So we should bring that kind of ecosystem in our mind, no matter whether you work in India or in US or in Europe or any part of the world. Prove that everybody is your family member. That is very essential component. And my last point is that please do your homework and study a lot, read a lot. Today's context, I hope my colleague Mr. Ansari also would like to highlight on that part. Many times we are getting many intelligent people, or let's say good scholarly mind, but then the reading habits have gone down drastically. Please do read. If you read, then only you can learn many things. Listening habits, it is also very, very important, because many times we talk a lot, but we listen less. So we need to listen, improve that listening habit. If you listen, it is also a great way of learning, reading, learning. And third is called communicating effective. Effective means we can talk hours together. When you conclude, you hardly find anything. जिसको हम कहते हैं अपने भाषा में कि gossiping. Let's not a gossiping community, rather than talk smart, talk straight. I believe this is the kind of essence of the message we are intend to give you. My colleague Joya is also with us. He is also a faculty who has seen very closely journalism or the media industry as well, like Said Saab. So the faculty fraternity always give this kind of guidance to the children.
And I'm sure Priya ma'am is also sensitizing you day and night. Please feel something that is special that you are learning while you are studying in the college. And the outcome part, every day is a great day. Every day challenges will come, but we need to solve it. So my final word is be a problem solver. There are many problems in life, and many people come and talk and started cribbing. Let's not be a cribbing community, rather than problem solving attitude that must be possessed by every aspiring student who intend to get into media industry. So these are the points I would like to put before you. And my sincere thanks to Priya ma'am again, and Mr. Anand, my colleague, to conducting and make this event possible. Thanks to Dr. Sharma, the principal of the college, and also the Honorable President, Mr. Sharma of your college, because helping us, giving us the space so that we are able to talk to young mind, and each one of you made our day. And I'm quite glad to see all of you smiling, good faces. Very nice. God bless you in your journey, in your futuristic path, and each one of you being laurels to your own family, to your college, your alma mater, and also to the society, so that we all always feel proud of each one of you that you work after, I mean, believe you complete and then you proceed your career path. So finally, I could say, God bless each one of you. Thank you so much. Thank you, sir, for providing your gracious presence and to join us to enhance our joy. Thank you so much, sir. Now the wait finally is over. I consider it a great honor for me to welcome our honorable chief guest, Mr. Syed Ansari, senior anchor and chief and executive editor, to come up on the platform and enlighten us on by his speech. Welcome, sir. I request you to unmute yourself and address the meet, sir. गुड मॉर्निंग ऑल, नमस्कार। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी, सीधे GGDSD कॉलेज चंडीगढ़ से, डॉक्टर अजय प्रिंसिपल, डॉक्टर प्रिया चड्ढा और GGDSD के बच्चों के साथ। थैंक यू डॉक्टर ज्योति, थैंक यू फ्रेंड आनंद एंड Zoya to providing such a wonderful opportunity to be with bright young students like you. बच्चों, टॉपिक दिया है मैनेजिंग न्यूज एंड लाइफ ऑफ अ जर्नलिस्ट, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, राइट? हमें लगता है कि चैलेंजेस तो कुछ है ही नहीं। एक जर्नलिस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज और अपॉर्चुनिटीज होती है, और वो कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, यही हमें समझने की बात है। अगर आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, अगर आप जर्नलिज्म करना चाहते हैं, अगर आप मास कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, अगर आप टीवी में, रेडियो में, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, पोर्टल्स के लिए, यूट्यूब चैनल्स के लिए, न्यू मीडिया के लिए काम करना चाहते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। लोग हो सकता है आपको डराते हो कि बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। नहीं, कुछ नहीं। आपको जितना पढ़ना था, जितनी मेहनत करनी थी, आपने कर ली। अब सिर्फ आपके मन का करने का समय है, आपको मस्ती करने का समय है। तो जर्नलिज्म में आप मस्ती ही करते हैं, जर्नलिज्म में आप मन का करते हैं, जर्नलिज्म में आप लोगों की मदद करते हैं, जर्नलिज्म में आप लोगों को के दुख, दर्द, तकलीफों को दूर करते हैं।
तो जो आज का टॉपिक है, मैनेजिंग न्यूज एंड लाइफ ऑफ अ जर्नलिस्ट, इसमें भी कुछ नहीं करना है। जो आपकी जिंदगी है वही एक जर्नलिस्ट की जिंदगी होती है, उससे हटकर कुछ नहीं होता। कैसे? जैसे आप अपने आसपास होने वाली किसी भी एक्टिविटी से सीधे सीधे अफेक्टेड होते, उसका असर आप पर होता है। चाहे फॉर एग्जाम्पल आपके घर में अगर कोई खुशी है तो आप भी खुश होते हैं, आपके फ्रेंड का बर्थडे है तो जाहिर सी बात है आप भी एक्साइटेड होते हैं। अगर मान लीजिए आपके आसपास, आपकी लोकेलिटी में, आपकी कॉलोनी में, आपकी बिल्डिंग में कहीं कोई मिसहैपनिंग होती है तो आप भी दुखी होते हैं। तो जो लाइफ आपकी है वही जर्नलिस्ट की, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आप अपने लेवल पर कोशिश करते हैं कि कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें, किसी के दुख को कम कर सकें, किसी की तकलीफ को दूर कर सकें, किसी की हेल्प कर पाएं, या अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो इमोशनली उसको सपोर्ट कर पाएं। ये करते हैं आप, आई एम श्योर आप सब करते होंगे और करना भी चाहिए। यही एक जर्नलिस्ट भी करता है। फर्क सिर्फ ये है कि आप इंडिविजुअल लेवल पे करते हैं और हम टीवी पर करते हैं, हम न्यूज़पेपर में करते हैं, हम थ्रू डिफरेंट मीडियम करते हैं। तो अब आप बताइए, आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा कि जर्नलिस्ट की लाइफ बहुत टफ होती है, बहुत मुश्किल होती है क्या? जहां आपको पढ़ना नहीं है, जहां आपको लिखना नहीं है, मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़नी है, कोई एग्जाम नहीं देना है, कुछ नहीं करना है, तो ऐसे में जर्नलिस्ट की लाइफ टफ कैसे हो सकती है? टफ सिर्फ इसलिए हो सकती है कि आप में और हम में फर्क, आप में या चलिए आप अभी स्टूडेंट्स हैं, लेकिन आप जब पास आउट कर जाएंगे, जब आप फील्ड में होंगे, जब आप काम करेंगे या आप जब जॉब सर्च करेंगे, तो वहां फर्क सिर्फ ये होगा कि आपको अलर्ट रहना है। सिर्फ आपके आसपास आपके नियर एंड डियर्स के बारे में ही आपको पता नहीं होना है, तब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि आपको पूरी दुनिया के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, और वो पता करने के लिए आपको एफर्ट्स भी करने होंगे और एफर्ट्स भी करना चाहिए, राइट? अब वो एफर्ट्स कैसे होंगे? वो एफर्ट्स ऐसे होंगे, मान लीजिए आप वर्किंग हैं, तो वो असाइनमेंट आपको अपने ऑफिस की तरफ से, अपने सीनियर की तरफ से, आपके बॉस की तरफ से दे दिया जाएगा, विच इज वेरी इजी। आपको जो असाइनमेंट दे दिया, फॉर एग्जांपल आप रिपोर्टर हैं तो एक पर्टिकुलर खबर के बारे में, न्यूज के बारे में आपको कह दिया कि जाइए आप उसे रिपोर्ट कीजिए। अगर आप एंकर हैं तो आपसे कह दिया कि आप 1 आवर 2 आवर एंकरिंग कीजिए। अगर आप राइटर हैं तो आपसे कह दिया कि आप पर्टिकुलर 2-3 स्टोरीज लिख कर दे दीजिए। अगर आप कैमरा पर्सन है तो कैमरा शूट कर दीजिए, विजुअल्स शूट कर दीजिए। अगर आप एडिटर हैं तो उसे एडिट कर दीजिए। बहुत आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत लिमिटेड हो जाती हैं, बट उस लेवल तक पहुंचने के लिए वो पोजीशन को अचीव करने के लिए आपको अभी स्कूल से लेकर, कॉलेज से लेकर और जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन की डिग्री कंप्लीट करने तक थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। और वो मेहनत क्या करनी होती है? वो मेहनत फिर से ऐसा नहीं कि आपको मोटी मोटी किताबें पढ़नी है, बिल्कुल नहीं पढ़नी। हम हमेशा ये कहते हैं कि जर्नलिज्म में आपको कम से कम टेक्स्ट बुक्स पढ़नी है और ज्यादा से ज्यादा अपने मन की चीजें पढ़नी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको साइंस में इंटरेस्ट है, आप साइंस फिक्शन पढ़िए, साइंस के रिसर्च पढ़िए, रिसर्च पेपर्स पढ़िए। आपको अगर लिटरेचर में इंटरेस्ट है तो आप लिटरेचर पढ़िए, कविता कहानी पढ़िए, हिंदी अंग्रेजी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस, जो आपको पसंद है वो कीजिए। अगर आपको एजुकेशन में है तो आप एजुकेशन पॉलिसीज के बारे में पढ़िए, कॉलेजेस के बारे में पढ़िए, इनोवेशंस के बारे में पढ़िए। अगर आपको आईटी में इंटरेस्ट है तो आप उसके बारे में पढ़िए। ये सब पढ़ना होता है, लेकिन उससे पहले आपको ऑलराउंडर की तरह पढ़ना होगा।
आपको स्पोर्ट्स भी पढ़ना है, आपको साइंस भी पढ़ना है, आपको लिटरेचर भी पढ़ना है, आपको एजुकेशन भी पढ़ना है, आपको वर्ल्ड इकोनॉमी भी पढ़नी है, आपको इंडियन पॉलिटिक्स भी पढ़नी है, आपको वर्ल्ड पॉलिटिक्स भी पढ़नी है, आपको सब कुछ पढ़ना है। तो अब आप बोलेंगे भाई ये तो बहुत मुश्किल काम है, अब हम इतना सारा कैसे पढ़ेंगे? इससे तो बढ़िया ये है कि हम पर्टिकुलर कोई कोर्स कर लें और अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ें और खत्म करें, वो ज्यादा इजी होगा, आप ये सोच सकते हैं। नहीं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। टेक्स्ट बुक में तो ये है आपको इंटरेस्ट है या नहीं है, आपको पढ़ना है, आपको समझ में आए या नहीं है, आपको पढ़ना है, समझना है, रटना है, कुछ भी करना है, एग्जाम पास करना है। जर्नलिज्म में ये नहीं करना है। जर्नलिज्म में बहुत थोड़ा सा टेक्स्ट बुक इसलिए पढ़ना है क्योंकि आपको पास होना है, और बहुत ज्यादा आपको जानना समझना है इसलिए क्योंकि आपको एक जर्नलिस्ट बनना है। जर्नलिज्म या जर्नलिस्ट बनना किसी भी जॉब से बहुत डिफरेंट होता है, ये आप ध्यान रखिए। और डिफरेंट इसलिए होता है कि किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में आपको एक एक सब्जेक्ट का मास्टर बनना है, लेकिन जर्नलिज्म में आपको एटलीस्ट अगर मास्टर नहीं तो जैक ऑफ ऑल बनना है। और वो इसलिए बनना है क्योंकि जॉब नहीं मिलने तक आपको सब पता होना चाहिए, और जॉब मिलने के बाद भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम एंकर हैं। और इसलिए अगर एंकरिंग की बात करें तो थोड़ा थोड़ा हमें दुनिया जहान की जानकारी होनी चाहिए। और उसके लिए क्योंकि आजकल ये टेक्नोलॉजी का जमाना है। सी आप लोग, अब आप लोग सब दूर दूर बैठे हैं, अपने अपने घरों में बैठे हैं, और वर्चुअली हम लोग सब कनेक्टेड हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे की बातें सुन रहे हैं। सो ये टेक्नोलॉजी, और इस टेक्नोलॉजी को और एडवांस टेक्नोलॉजी को जानने समझने के लिए, और हर रोज टेक्नोलॉजी में जो नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं, उन इनोवेशंस को जानने समझने के लिए आपको एक बढ़िया इंस्टीट्यूट की जरूरत पड़ती है। और बिल्कुल इसी तरह से इस टेक्नोलॉजी को समझने के लिए जर्नलिज्म में भी, जर्नलिज्म के हर एस्पेक्ट को समझने के लिए, कैसे बढ़िया स्क्रिप्ट लिखी जाती है, कैसे एक प्रोग्राम को बेहतरीन बनाया जाता है, उसका प्रेजेंटेशन के स्टाइल्स क्या होते हैं, किस तरह से उसे प्रेजेंट किया जाता है, कैमरा वर्क क्या होता है। भाई कैमरा तो ये भी है, हम लोगों ने भी सबने फ्रेम बनाए हैं। किसी का वॉल दिख रहा है, किसी का पीछे स्विच बोर्ड दिख रहा है। आनंद के पीछे दो बड़ी बड़ी लाइट्स ऑन नजर आ रही हैं। सौम्या ने एकदम टाइट क्लोजअप अपना बना लिया है कि बस मेरी शक्ल देखिए और कुछ मत कीजिए। ठीक, कालिंदी ने एक अपना बहुत अच्छा फोटो लगा दिया है। अवंतिका ने कुछ बहुत ही प्यारा सा कैरिकेचर या कार्टून कुछ कर दिया है। जोया मैम म्यूट करके बैठी हैं अपने आप को, ऑडियो वीडियो दोनों उन्होंने बंद किया हुआ है। आप सभी ने, हरिओम कुमार जी गायब हैं, स्मृति गायब हैं, अमृता तिवारी गायब हैं, हाँ, श्रेया शर्मा ने एस लिख दिया है। ये टेक्नोलॉजी, तो ये तो आपके पास फोन है, स्मार्टफोन है, इससे आपने कर लिया। लेकिन हमें अगर टीवी में काम करना है, से फॉर एग्जांपल टीवी में काम इसलिए करना है क्योंकि हम टीवी में काम करते हैं। देखिए जोया मैम ने अपना वीडियो ऑन कर लिया, अब फ्रेम गलत बनाया इन्होंने, सारी वॉल दिखा रही हैं, अपना चेहरा कम दिखा रही हैं। तो टीवी में अगर हमें काम करना है तो ये सब हमें सीखना होगा, और ये सब अगर हमें सीखना होगा तो उसके लिए हमें किसी एक अच्छे इंस्टीट्यूट की जरूरत पड़ती है। अब देखिए ये आरूहिनी, क्या कर रही हैं आप? सी घर में सब, मम्मी को भी दिखा दिया, पूरा घर दिखा दिया, देखो मेरा घर कितना सुंदर है, पीछे मेरी मम्मी बैठी है। मम्मी को हेलो बोलो, हाय बोलो। ठीक है, समझ रहे हैं आप दोस्तों? हरिंदर, देखिए आनंद जी ने अभी तक फ्रेम ठीक नहीं किया अपना। छवि का फ्रेम सबसे बढ़िया है, लेकिन पीछे स्विच बोर्ड दिख रहा है। D7058DI13, क्या है ये? आपकी आईडी है, इससे आपने लॉगिन किया है। सो ये सब चीजें आपको टीवी में सीखनी होंगी, और ये बहुत ही क्रिएटिव है, बहुत ही मजा आएगा। हम यही सब आप बच्चों को सिखाते हैं जब आप लोग आते हैं। तो आनंद, जोया तो खुद भी एक एंकर हैं, डॉक्टर पति ने बताया। सो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आपको सिर्फ एक अच्छे इंस्टीट्यूट की जरूरत है, बहुत अच्छी फैकल्टी की जरूरत है, बहुत अच्छे मेंटोर, गाइड
प्रोफेसर, टीचर, फिलोसफर्स की जरूरत है जो जो आपको एक सही रास्ता दिखा सके, बता सके कि वो सही रास्ता क्या है, जिस रास्ते पर चलकर आपको अपनी मंजिल को हासिल करना है। और वो मंजिल क्या है? वो मंजिल आज आपको तय करनी है। वो एम, वो लक्ष्य आज आपको बनाना है। अगर आज जर्नलिज्म में बच्चों एक बात आप गांठ बांध लीजिए कि अगर आज आप अपना एम नहीं बनाएंगे कि आपको एंकर बनना है, आपको रिपोर्टर बनना है, आपको राइटर बनना है, कैमरा पर्सन बनना है, आपको एडिटर बनना है, आपको ग्राफिक आर्टिस्ट बनना है, अगर अगर आज आप तय नहीं करेंगे तो आपको जर्नलिज्म करने के बाद, बीजेएमसी एमजेएमसी करने के बाद, अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद मुश्किल होगी। लेकिन अगर अगर आप आज तय कर लेते हैं कि आपको क्या करना है, तो ट्रस्ट में, विश्वास कीजिए, एक बेहतरीन अच्छा अगर आपको इंस्टीट्यूट कॉलेज मिल जाता है, अच्छे टीचर्स प्रोफेशनल्स मिल जाते हैं, वो जो ऑलरेडी फील्ड से हैं, जोया मैम की तरह, तो ट्रस्ट में, विश्वास कीजिए कि आपको अपनी उस एम को अचीव करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। ये आई एम श्योर डॉक्टर दिव्या हमसे सहमत होंगी, क्योंकि क्योंकि हमें हमें बच्चों को सिर्फ एक सही रास्ता डॉक्टर दिव्या दिखाना है। डॉक्टर प्रिया, हमें सिर्फ आप तो खैर आई एम सो सॉरी, आपके सामने नहीं बोलना चाहिए, आप तो इतने बच्चों को संभाल रही हैं, इतने बड़े कॉलेज में संभाल रही हैं, सब कर रही हैं, तो लेकिन वही है। और इसके लिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप ठीक सही इंस्टीट्यूट में जाएं, अच्छे लोगों के बीच में जाएं, प्रोफेशनल्स के बीच में जाएं, ताकि आप जब डिग्री लेकर, डिप्लोमा लेकर बाहर निकलें, फील्ड में निकलें, तो आप किसी के पास भी, फॉर एग्जाम्पल आप अगर हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, तो हमें ये लगना चाहिए कि यार ये बच्चा तो ऑलरेडी प्रोफेशनल है। ये तो जिस जिस इंस्टीट्यूट, जिस कॉलेज, जिस यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया, वो तो उन्होंने ट्रेन करके, इज अ स्किल्ड वर्कर, ट्रेन्ड वर्कर। तो इसके लिए दो चार चीजें बच्चों आपको करनी है। आपको आपको आपके अच्छे गाइड, फिलोसफर, टीचर्स होने चाहिए। ये ध्यान रखना है आपको कि कौन से वो आपके टीचर्स हैं इंस्टीट्यूट के जो आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग दे सकता है, बढ़िया दे सकता है, ऑन जॉब ट्रेनिंग दे सकता है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको अगर ऐसा एटमॉस्फेयर मिल जाए जहां प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं, जहां चैनल चल रहा है, या वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, और अगर वहीं आप काम कर रहे हैं, तो आप बताइए कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा फायदेमंद होगा, या आपका जो पढ़ाई लिखाई आप करेंगे वो? प्रैक्टिकल तो इसके नॉलेज। लिए प्रैक्टिकल वेरी नॉलेज। गुड, वेरी गुड। तो इसके लिए बच्चों आपको करना कुछ नहीं है, दो तीन क्योंकि समय कम है, दो तीन टिप्स अगर आप चाहें तो डॉक्टर प्रिया अगर आप इजाजत दें तो हम दो तीन टिप्स बच्चों को दे दें। आपको कुछ नहीं करना है बच्चों। आई एम सो सॉरी, हो सकता है कि आप आपके टीचर डॉक्टर अजय, डॉक्टर प्रिया, डॉक्टर दिव्या सब बोलेंगे अरे किसे बुला लिया जो बच्चों को पढ़ने के लिए मना कर रहा है। बिल्कुल मत पढ़िए, कोई जरूरत नहीं पढ़ने की। हम हमेशा मना करते हैं पढ़ने, पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ नहीं मिलता। इनसे पूछिए, आप अपने 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 टीचर से पूछिए, तीन हैं शायद, और अगर हैं तो मुझे पता नहीं, क्योंकि डॉक्टर अजय, डॉक्टर दिव्या, डॉक्टर प्रिया तो मुझे नजर आ रहे हैं। तो आप इन लोगों से पूछिए कि जो पढ़ाई इन्होंने की थी, क्या वो उनकी जिंदगी में काम आ रही है? जर्नलिज्म में ऐसा बिल्कुल नहीं। जर्नलिज्म में आपको सब पढ़ना है, आपको सारी जानकारी होनी चाहिए, आपको सब पता होना चाहिए, आपको पॉलिटिक्स के बारे में पता होना चाहिए, स्पोर्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे हमने पहले कहा था। दो तीन टिप्स डॉक्टर प्रिया जो हम बच्चों को बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं उनसे। बच्चों, आपका जीके बहुत अच्छा होना चाहिए जॉब लेने के लिए। बाद में तो हम लोगों का कितना अच्छा है आप जानते हैं, टीवी पर रोज हम एक्सपोज होते हैं, आप लोग हंसते होंगे घर में बैठकर देखकर कि अरे कुछ नहीं आता, किन लोगों को बिठा दिया है।
लेकिन जब तक आपको जॉब नहीं मिलती तब तक तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो आप एक काम तो ये कीजिए, अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं तो प्लीज पढ़ना शुरू कर दीजिए, चाहे वो फिजिकल न्यूज़पेपर आप पढ़ें या आप ऑनलाइन पढ़ें। आज आपके पास, सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, आपके पास सारे, आप घर में हैं, बस में हैं, कार में हैं, पार्क में हैं, कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, स्कूल में हैं, हर जगह आप पढ़ सकते हैं। तो प्लीज 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 आप न्यूज को पढ़ना शुरू कीजिए, न्यूज को देखना शुरू कीजिए। इसके अलावा दुनिया में जो भी हो रहा है, आपको इंटरेस्ट हो या ना हो, आप प्लीज उसमें इन्वॉल्व होना शुरू कीजिए। जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होंगे, जब तक आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, जब तक आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तब तक मुश्किल होगा। क्योंकि जनरल नॉलेज ऐसा नहीं है कि आप जनरल नॉलेज की किताब उठाई, आपने पढ़ी और आपको सब पता चल गया। नो, नहीं, बिल्कुल नहीं। जर्नलिज्म में आने से पहले, जर्नलिज्म में कोई भी जॉब हासिल करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप जो भी देखें सुने उसे याद रखें। आप चंडीगढ़ में हैं, पंजाब में क्या हो रहा है? कल अकाली दल ने एक बहुत बड़ा एजिटेशन किया फार्मर्स के सपोर्ट में दिल्ली में। क्यों किया, आपको यह पता होना चाहिए। आपको यह भी पता होना चाहिए कि क्या कभी शिरोमणि अकाली दल, एसएडी और बीजेपी साथ में सरकार बना पाए, गवर्नमेंट बना पाए। आपको यह भी पता होना चाहिए कि हरसिमरत कौर जो कल आपको सड़कों पर दिखी, सुखबीर सिंह बादल, क्या इन दोनों में से कोई मिनिस्टर रहा है, चीफ मिनिस्टर रहा है, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रहा है? आपको पता होना चाहिए। क्यों, आपको यह भी थोड़ा सा पता होना चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ कि कल हरसिमरत कौर उसी गवर्नमेंट के खिलाफ नारे लगा रही थी, सड़क पर थी कुछ महीनों पहले, जिस गवर्नमेंट में वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्टर थे। ये आपको पता होना चाहिए। आप, आई एम श्योर, आप इतने सारे बच्चे हैं और क्रिकेट तो हम सभी बहुत पसंद करते हैं। विराट कोहली ने क्यों कहा कि T20 की कैप्टेंसी अब वो नहीं करना चाहते? वनडे करेंगे, टेस्ट करेंगे, T20 क्यों नहीं करेंगे भाई? आपको पता, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। हम ये नहीं करेंगे आपको उसको पूरी उसकी हिस्ट्री पता हो, डिटेल्स सारी पता हो, लेकिन थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। 4-5 बातें हम बता रहे हैं, बच्चों प्लीज नोट कर लीजिए। और किसी भी इंस्टीट्यूट में रहिए, कहीं भी पढ़ाई लिखाई कीजिए, अच्छे में जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, जहां पर प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिले, किसी चैनल के साथ आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग करने का मौका मिले हो तो मजा ही आ जाएगा। वहां तो हाफ जॉब डन वाली बात होती है कि आधी जंग आपने फतेह कर ली। लेकिन आप कम से कम अपने देश के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। हमारे देश के अभी तक कम से कम जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा हमारे जितने भी स्टेट्स हैं, राज्य हैं, उन राज्यों में से 10-10 कर लीजिए। 10-10 कर लेंगे तो मजा आ जाएगा। 10 राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स आपको पता होने चाहिए। वहां की विधानसभा और लोकसभा की कितनी कितनी सीट्स हैं ये आपको पता होना चाहिए। उन स्टेट्स में क्या सिंगल पार्टी गवर्नमेंट है या कोएलिशन गवर्नमेंट है वो आपको पता होना चाहिए। आपको हमारी कम से कम 10 स्टेट्स के गवर्नर्स के बारे में पता होना चाहिए। आपको हमारी इकोनॉमी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। हमारा ग्रोथ रेट क्या है, सेंसेक्स को आपको समझना आना चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि सेंसेक्स के बिना आजकल हमारी कोई भी न्यूज जो है वो ये सब आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से, बिल्कुल जिस तरह से देश के बारे में कुछ बातें आपको पता होना चाहिए, आपको दुनिया के बारे में पता होना चाहिए, आपको कुछ कॉन्टिनेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। कम से कम दुनिया के 10-15 इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स, वहां की रूलिंग पार्टीज, वहां की ऑपोजिशन पार्टीज के नाम कम से कम याद होने चाहिए। आज दुनिया में बहुत अनरेस्ट है। वो अनरेस्ट क्यों है उसका थोड़ा बहुत आइडिया आपको होना चाहिए।
सिर्फ अफगानिस्तान में अनरेस्ट नहीं है, आप हैरान रह जाएंगे, यूएसए जबरदस्त डिस्टर्ब है। ऐसा क्यों है? इसके अलावा यूरोप के कई सारे ऐसे देश हैं जहां खूब लोग सड़कों पर निकले हुए हैं, मारपीट हो रही है। पेंडेमिक में इतनी ज्यादा इकोनॉमी की बैंड बज गई है, वो क्यों? कौन सी ऐसी कंट्री है जो आज भी इस पेंडेमिक के बाद भी अपनी इकोनॉमी को बचा पाई है और वो ठीक ठाक काम कर रही है? बिजनेसेस तबाह बर्बाद हो गए हैं, फैक्ट्रीज का बुरा हाल है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्यों? ये थोड़ा अगर आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि साहब मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो मैं पॉलिटिक्स के बारे में पता करूंगा। आपको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो या नहीं हो, आपको आपको पता होना चाहिए कि विंबलडन चैंपियन कौन है, सिंगल कौन है, डबल्स कौन है, मेंस कौन है, विमेन कौन है, सारा आपको ये कम से कम थोड़ी थोड़ी जानकारी पता होनी चाहिए। वर्ल्ड फुटबॉल चैंपियन कौन सी कंट्री है, आईसीसी टूर्नामेंट्स क्या होते हैं, अगर क्रिकेट में आपको इंटरेस्ट है तो T20 वनडे और टेस्ट में क्या फर्क होता है, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से लोकसभा राज्यसभा में क्या फर्क होता है, इसी तरह से जिस तरह से विधानसभा और विधान परिषद में क्या फर्क होता है। तो ये छोटी छोटी सी बातें, और अगर आपको नहीं पता है तो अपने टीचर से पूछिए, टीचर से नहीं, मम्मी पापा से। ये ऐसी चीजें हैं कि जरूरी है इसके लिए हमेशा आपको किताबें खोलकर बैठना है, बिल्कुल नहीं। हम एक भी चीज ऐसी नहीं बता रहे हैं जो आपको किताब में मिलेगी। हम ये सारी चीजें आप टीवी देखकर, आप मोबाइल पर जो आप व्हाट्सएप करते रहते हैं, फेसबुक खेलते रहते हैं, इंस्टा और ब्ला 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 पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। आप खूब कीजिए, जो मर्जी आए कीजिए, अपनी जिंदगी जीना बिल्कुल मत छोड़िए, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज ये भी कर लीजिए। ट्विटर पर आ जाइए, अगर नहीं है तो ये मत सोचिए कि ट्विटर पर तो बड़े लोग आते हैं, बड़े मतलब जो वर्किंग होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, बिल्कुल नहीं। अगर आप इंस्टा पर हैं, अगर आप फेसबुक यूज करते हैं, अगर आप दूसरे इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हैं, तो आप ट्विटर पर क्यों नहीं? अगर आज से आप ट्विटर पर होंगे तो ये आपको प्रोफेशनली और एक जर्नलिस्ट के लिए आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आपके फॉलोअर्स बढ़ते रहेंगे, 3 साल 4 साल 5 साल में आपके 1000 लैक्स, अगर मिलियंस में फॉलोअर्स हो गए तो सोचिए, आपको कोई भी चैनल वैसे ही ले लेगा, कोई भी मैगजीन, कोई भी यूट्यूब चैनल, कोई भी न्यू मीडिया, कोई भी वेब आपको वैसे ही उठा लेगा। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिए। बहुत ज्यादा चिंता करने की, बहुत ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लाइफ में क्या होगा, जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, कंपटीशन बहुत है, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। जितना परेशान होंगे उतनी अपनी अपॉर्चुनिटीज को कम करेंगे, जितना परेशान होंगे उतनी अपनी हेल्थ को खराब करेंगे, जितना परेशान होंगे उतना आपके लिए लाइफ में मुश्किल होगी। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर पति है, डॉक्टर पति हम लोगों को कभी कोई टेंशन देते ही नहीं। आनंद और जोया हैं, पूछ लीजिए, खूब फ्रेंड्स की तरह रहते हैं इन लोगों के साथ, हमारे साथ खिलाते पिलाते हैं, मस्ती करते हैं। बोलते हैं कि भाई अपना काम पूरा करो, क्लासेस पूरी होनी चाहिए, कोर्स पूरा होना चाहिए, प्रैक्टिकल्स पूरी करवानी चाहिए, बच्चों को बाकी जो मर्जी करो। तो प्रेशर नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। जिस दिन प्रेशर ले लिया, इतनी छोटी उम्र में बच्चे हो अभी आप लोग, आपको सिर्फ लाइफ को एंजॉय करना है, मस्ती करना है, खूब खाना पीना है, खूब सारी गर्लफ्रेंड्स बनाओ, खूब सारे बॉयफ्रेंड्स बनाओ, खूब एंजॉय करो लाइफ को, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन ड्रग्स से दूर, सिगरेट नहीं पियेंगे, शराब नहीं पियेंगे, ड्रग्स नहीं लेंगे। अगर ये लिया तो मान लीजिए फिर तो आप खत्म, फिर तो खुद तो बर्बाद होंगे ही होंगे, अपने मम्मी पापा को भी रुलाएंगे, अपने टीचर्स की नाक भी कटवाएंगे, और कोई आपको ना पसंद करेगा, ना किसी को आप प्राउड फील करवाएंगे, ना कोई आपका नाम लेगा जिंदगी में। ये अच्छी चीज नहीं है, जो अच्छी चीज नहीं है। फैशन हो गया आजकल सिगरेट पीना। प्लीज 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 हाथ जोड़ के आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये सब काम प्लीज मत कीजिएगा। और बातें बहुत सारी है बच्चों, कभी और मिलेंगे, आपसे बात करेंगे। लेकिन ये छोटी छोटी सी जो थोड़ी सी टिप्स है, हाँ, आप अपना ख्याल भी बहुत रखना है, अपने आप को फिट रखिए, अच्छा खाइए, जिम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए। ये नहीं कि यार अभी तो हम यंग है, चलेगा, सब सब चलता है, नहीं। कंपटीशन दीजिए अपने सीनियर्स को, अपने से बड़ी उम्र के लोगों को कंपटीशन दीजिए,
उन्हें बताइए कि उनके लिए रोल मॉडल बनी कि हमारे जैसा बन के दिखाइए। आजकल लड़कों को तो बड़ा शौक है, हालांकि लड़कियां भी खूब जिम शिम करती हैं, बट आप खूब बॉडी शॉडी बनाते हैं। देखो हरिओम एकदम हंस रहा है। क्यों हरि, कितना घंटा करते हो जिम? नहीं करते हो? अवंतिका जाती है, ठीक है बच्चों। No, sir. डॉक्टर प्रिया, आई थिंक मैम, बातें तो बहुत सारी हैं बच्चों से करने के लिए, मजा भी आ रहा है आप लोगों के साथ, लेकिन क्या है कि डॉक्टर पति और आनंद जी तो कुछ नहीं कहेंगे, जोया मैम एकदम आंखें दिखा दिया बीच में एक दो बार उन्होंने, मुंडी हिलाने से कुछ नहीं होगा। ऑल द बेस्ट बच्चों, ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, ढेर सारी दुआएं, मेहनत कीजिए अपना ख्याल रखते हुए, बिना प्रेशर के। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you, sir. I actually feel that I have to multiply the word thank you to actually equalize the information you gave us. And now we'll be having a question answer round. Students, whoever have the question can put it on the chat box, and I'll ask the question on behalf of the students to the sir. Anyone with any This is not fair. देखो आपको मना करना चाहिए अवंतिका कि भाई आप क्यों डिसाइड करोगे? हाँ, जिसे पूछना डायरेक्टली पूछे, चैट बॉक्स में क्यों होगा? सी Okay, sir. आवाज भी उठाना चाहिए। हाँ, एक जर्नलिस्ट को सवाल पूछना चाहिए, आपको पूछना चाहिए भाई अवंतिका आप ऐसा क्यों कर रही हैं? क्यों आप क्यों पूछेंगे, हम डायरेक्ट क्यों नहीं पूछेंगे? ठीक है, तो एक जर्नलिस्ट को, अगर आप जर्नलिस्ट बनना चाह रहे हैं तो आप हर चीज पर सवाल भी पूछिए। Okay, sir. So you guys have this golden opportunity to interact with sir. So whoever have this question, raise your hand and I'll let you speak. So I have a question. Yes, Harnoor. Go on. So you said that we should set our goal right now, and I want to ask you: did you imagine yourself as an anchor? Like always imagine yourself being an anchor? Did you नहीं, set बिल्कुल a नहीं। goal? अरे नहीं यार, हम तो एक्सीडेंटल बन गए। सीरियसली हाँ, ये जरूर था कि हम ऑल इंडिया रेडियो में काम करते थे और सब काम करते थे। हाँ, आपको चूज ही नहीं होना है इनिशियल स्टेज में। जब आप शुरुआत करते हैं अपने करियर की, तो आपको चूज ही नहीं होना है। एम, गोल आपका होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि क्या बनना है। बट शुरुआती दौर में जर्नलिज्म में आपको सारे काम करने पड़ते हैं, खासतौर से टीवी की हम बात कर रहे हैं। अगर आप टीवी में काम करना चाहते हैं तो आपको लिखना भी होगा, आपको कैमरा भी करना होगा, एडिटिंग भी करना होगा, आपको ऑलराउंडर बनना होगा, सब कुछ आना चाहिए। तो ऐसे नहीं था। मैं ऑल इंडिया रेडियो में आरजे था, वहाँ छोटे बड़े प्रोग्राम्स किया करता था लॉन्ग बैक। आप लोग तब पैदा भी नहीं हुए होंगे, तब की बात है 90s की, तो अर्ली 90s की। बस धीरे धीरे फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ जगह जगह अप्लाई करते थे। इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी जितने चैनल्स आज हैं। उस जमाने में सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था और एक प्राइवेट चैनल हुआ करता था, बस 2 चैनल्स हुआ करते थे और कुछ नहीं था। तो हम लोग क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो में काम करते थे, वॉइस पर थोड़ा सा काम किया था, सीखा था सीनियर्स से। वॉइस मॉड्यूलेशन क्या होता है, आवाज क्या होती है, कैसे बोलना है, कैसे करना है, ये सब वहाँ ट्रेनिंग मिली थी। तो दूरदर्शन में कुछ वैकेंसीज आई, अप्लाई किया सब लोगों ने और लकीली हो गया बस। लेकिन यहाँ काम करना काम आया था, मेहनत करना काम आया था। ऑल इंडिया रेडियो न्यूज, जिसे कि हम जेएनआर कहते हैं, जनरल न्यूज रूम, चंडीगढ़ में भी है हमारा यार, वहां भी न्यूज है। हर स्टेट कैपिटल में रीजनल स्टेशन होता है ऑल इंडिया रेडियो का। तो वहां हम लोग हिंदी न्यूज में काम किया करते थे, तो इसलिए हिंदी के बड़े दिग्गज लोग वहां पर काम करते थे, तो उन्होंने पीट कर हमारी हिंदी ठीक करवा ली। हाँ, एक बात बच्चों हम और बोलना चाह रहे हैं आपसे, वो ये बताना चाह रहे हैं कि लैंग्वेज, जर्नलिज्म में लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज पर कमांड आपको होना चाहिए। किसने सवाल पूछा था हमसे? आई एम सॉरी। So Hanur. हनुज, ठीक है। तो बच्चे, लैंग्वेज आपको कम से कम 2 लैंग्वेज आनी बहुत बहुत जरूरी है। हिंदी, इंग्लिश। हिंदी और अंग्रेजी जरूरी है आपको ये दो भाषाओं के बिना आप यू सिंपली कैन नॉट सर्वाइव, आप नहीं टिक सकते हैं। और
ठीक है, एक जो आपकी प्राइमरी लैंग्वेज होगी वो आपको पूरी तरह से, मतलब लैंग्वेज अगर अच्छी है तो आपके लिए जिंदगी जर्नलिज्म में, टीवी न्यूज में बहुत आसान हो जाएगी। अगर अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं हिंदी या अंग्रेजी में, अगर आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है हिंदी या अंग्रेजी में, तो आप मान लीजिए आप राइटर नहीं बन सकते हैं। जो डेस्क वर्क होता है हमारा, आप रिपोर्टर नहीं बन सकते हैं, आप एंकर नहीं बन सकते हैं, आप फेल हो जाएंगे, आपको कोई नहीं लेगा। तो शुरुआत ऐसी हुई कि हमने काम बहुत किया, हमने किसी काम को छोटा और बड़ा नहीं समझा। आपको आपको ताज्जुब होगा, हैरानी होगी, जब ऑल इंडिया रेडियो में हम काम करते थे तो परमानेंट नहीं थे वहां पर, हम कैजुअल काम किया करते थे। और एक शो करने के, एक शिफ्ट करने के, शिफ्ट में दूसरे बहुत सारे लिखना भी होता था, ट्रांसलेशन भी करना होता था इंग्लिश टू हिंदी, और उसके अलावा एक शो भी करना होता था। आपको हैरानी होगी कि हमें 50 रुपए मिलते थे। तो हम ये सोच सकते थे, हमारे दूसरे साथी जो हम लोग सब साथ में काम करते थे, ये सोच सकते थे कि 50 रुपए के लिए कौन 8 घंटे खराब करेगा, और वो भी नाइट शिफ्ट करनी पड़ती थी, रात 12 बजे से सुबह 8 बजे तक। तो आपको मेहनत जरूर करनी है, बिना मेहनत के आपको जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा। Sir, I have a question. Thank you so much, sir. Sir, I have a question. प्लीज, कौन है आप? अपना प्लीज नाम बताइए, मैं आपको मैं देख नहीं पा रहा हूँ। No. Can't see you. Where are you? Sir, Please, go on. आजकल सोशल मीडिया के आने के बाद there are a lot of pages and opinions in the market. Everybody has their own opinion. So how in this world you have been such unbiased person? Like, journalism is about stating facts and informing people, and you have done your job greatly. And my parents are a big fan of you, so I'm just giving a shout out to my parents because they were really happy when they came to know that I'm going to talk to you. So I wanted to ask you, how do you remain such unbiased person when everybody has their opinion, everybody gets biased on some point? Many thanks to your parents, and please convey my regards to them. बच्चे, आपने अपने सवाल का मेरा जवाब आप ही ने दे दिया। अगर आप जर्नलिस्ट हैं तो ये बहुत ही बढ़िया बात आपने पूछी। आप भूल जाइए आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पंजाबी हैं, गुजराती हैं, बंगाली हैं, आपको सब भूलना होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना होगा कि आप इंडियन हैं, आप भारतीय हैं। और अगर आप भारतीय हैं तभी आप अनबायस्ड रह सकते हैं। अगर आप भारतीय हैं तभी आप किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे या किसी को अननेसेसरी टारगेट नहीं करेंगे। तो ये आपको भूलना होगा। और न्यूज इज ऑल अबाउट न्यूज ओनली, इवेंट्स, हैपनिंग्स अराउंड यू एंड मी, वी ऑल। सो अगर हम बायस्ड हैं, तो हम सक्सेसफुल नहीं है। और सक्सेसफुल तो ठीक है, छोड़ दीजिए, होना नहीं होना कोई बात नहीं, जिंदगी में हर इंसान सक्सेसफुल हो या ना हो वो अपनी जिंदगी जीता है। लेकिन हम ना अपने साथ जस्टिस कर रहे हैं, ना अपनी सोसाइटी के साथ कर रहे हैं, ना अपने पेरेंट्स के साथ कर रहे हैं, और ना अपने देश के साथ कर रहे हैं। तो अगर आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो आप अपना ओपिनियन, अपने व्यूज घर रख कर आइए, भूल जाइए। आप ये ठान लीजिए कि जो सच है वही, उसके लिए मुझे नुकसान उठाना पड़े, मुझे परेशानी झेलनी पड़े, जो करना पड़े, जो होना पड़े हो, लेकिन मैं नहीं करूंगा। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Namaskar, sir. नमस्ते। Sir, you emphasized about the importance of institution. So I would love to know how your years in Jamia shaped your career. See, to be very frank and plain, जिस जमाने में जामिया में हम थे वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कुछ नहीं था। आपने अशोक चक्रधर जी का नाम सुना है? No, sir. अशोक चक्रधर जी हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े नाम हैं और व्यंग्य लिखते हैं, बहुत बड़े साहित्यकार हैं। तो अशोक जी हमें पढ़ाया करते थे। अशोक जी पढ़ाते थे, हेमंत शर्मा जी थे, असगर वजाहत थे, अब्दुल रसूलुल्लाह थे, ये बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट थे, साहित्यकार थे, प्रोफेसर्स थे, ये पढ़ाया करते थे। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था वहाँ, टेक्नोलॉजी नहीं थी उस जमाने में।
और ये लोग बेचारे बड़ी कोशिश करते थे। तो अशोक चक्रधर करते, आपने देखा होगा पुराने जमाने में जो हम यहाँ आपके टीचर्स और हम लोग बैठे हैं, तो एक टेप रिकॉर्डर हुआ करता था मैम। टेप रिकॉर्डर कौन कौन जानता है? जानते हैं सर। चाहे जानते हैं, कद्दू देखा भी नहीं होगा या घर में है। खैर तो अशोक जी ने पहली बार ये शुरू किया था कि वो अपने घर से टेप रिकॉर्डर लाते थे और हमसे कहते थे कि आप कैसेट्स खरीद लीजिए। बड़ा मुश्किल होता था उस जमाने में, 16 रुपए की कैसेट आती थी। 16 रुपए की कैसेट खरीदना बड़ा हमारे लिए मुश्किल होता था, लेकिन किसी तरह से यहाँ वहां जुगाड़ करके हम खरीदते थे। फिर वो उसमें अपना लेक्चर रिकॉर्ड करते थे और फिर वो हम लोग कॉपी करते थे सारा, और वो लेक्चर हम सुनते थे। तो यहाँ से हमारी टेक्नोलॉजी से जान पहचान हुई। बट हाँ, क्योंकि जामिया में रहने का फायदा ये मिला कि जामिया में टीचर्स बहुत अच्छे थे, सारे साहित्यकार थे, सारे जर्नलिस्ट थे, और हिंदी के दिग्गज थे। जितने नाम हमने बताए ये सब हिंदी के दिग्गज हैं। इसमें दुर्गा प्रसाद, डॉक्टर दुर्गा प्रसाद जी, यादव सर, ये सब हिंदी के बड़े बड़े नाम थे और सैकड़ों किताबें इन्होंने लिखी थी। तो इन लोगों ने कम से कम एक काम अच्छा किया कि ठोक पीट के मार के हिंदी अच्छी करवा दी। तो हिंदी की वजह से आज यहाँ हिंदी न्यूज में है। तो अगर एक भी चीज आपकी अच्छी हो गई तो उसका फायदा आपको मिलता है। तो हमें हमारी हिंदी का फायदा मिला, और उसके लिए मेरे टीचर्स को स्कूल में भी, एक स्कूल में भी गोयल मैम हमारी हुआ करती थी हिंदी की, तो उन्होंने भी बहुत मार मार के ठीक करवाया है। आप लोग नहीं जानते, यहाँ आपके टीचर्स जो बैठे हैं वो लोग जानते हैं, कादम्बरी एक मैगजीन आज भी आती है, उस जमाने में आती थी छोटी सी, वो घर आया करती थी, जबरदस्त हिंदी, तो वो पढ़ा करते थे, तो उससे भी हिंदी ठीक हुई। ठीक है, Thank you, sir. Next, I invite Sanchit Singh to ask his question. गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी रिसेंटली आरएसएस ने रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स ने इंडिया को 142 रैंकिंग दी थी आउट ऑफ 180 इन फ्रीडम इंडेक्स, ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो आपको क्या लगता है कि मतलब आउटसाइड फोर्सेस आपके प्रोफेशनलिज्म और राइट्स को इंटिमेट या थ्रेटन करती है एज अ सीनियर जर्नलिस्ट? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें हमारे देश में, दुनिया में इस तरह की बहुत सारी एजेंसीज हैं, बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, उनका काम ही ये, वो सर्वे करती हैं। फॉर एग्जांपल हम आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दें, टाइम मैगजीन का नाम आपने सुना है? यस सर। टाइम मैगजीन ने इस अभी जो लेटेस्ट उनका इश्यू है उसमें जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज ऑफ द वर्ल्ड हैं उनमें हमारे पीएम नरेंद्र मोदी का नाम है। आप जानते हैं ये बात? यस सर। ममता बनर्जी का नाम है, और एक और नाम ऐसा है जो बहुत डराता है, जो बहुत अजीब लगता है। क्या बता सकते हैं आप उसका नाम, वो नाम? सर आज मैंने सुना था पर मुझे याद नहीं आ रहा। सर मैंने आप बताएं, एनीवन, कोई बच्चा? मुल्ला बरादर। यस सर, दैट अफगानिस्तान। यस सर। अब जिसे हम टेररिस्ट कहते हैं उसे वो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लिस्ट में डाल रहा है, इसे आप क्या कहेंगे? इन सब चीजों से बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्हें अपना काम करना है, करने दीजिए। आपको अपना काम करना है, करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Next, I invite Kalindi Arora. Kalindi Arora. Hello, sir. Hello, sir. Hi, Kalindi. Listen to you. First of all, pleased to listen to you today. It was such a pleasure. So my question is, like, today in this world, people have a very vague perception about the journalists, that they only shout and they don't let other people keep their thoughts in front. So how the journalists are, managing to be relevant even when they are not shouting on the TVs and they're just keeping their point in very calm and composed way? Because we all know that we have all seen in our TVs that journalists are shouting and they are not letting other people speak. So how are the journalists still making relevance in the TV?
देखिए हम इस चीज को बिल्कुल नहीं मानते, ना हम वो काम करते हैं, ना हम इसे ठीक मानते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से है, अगर आपके घर में कोई गेस्ट आता है या आप उसे किसी को इनवाइट करते हैं लंच पे, डिनर पे, टी कॉफी पर, तो क्या आप उससे चिल्ला चिल्ला कर बातें करते हैं? क्या आप उसे डांटते हैं अगर वो गलत भी बोलता है? नहीं ना। तो इसीलिए हमें भी वो नहीं करना चाहिए, हम भी नहीं करते हैं, लेकिन सब लोग नहीं करते हैं, कुछ शोज में हो जाता है। लेकिन ट्रस्ट मी, विश्वास कीजिए, वो एंकर्स की गलती नहीं होती। सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि आपको रोकने के लिए, आपको मैनेज करने के लिए, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका शो डिरेल ना हो, आपका शो खराब ना हो, तो वो हो जाता है। लेकिन सब ऐसे नहीं है, प्लीज। और फिर वो ये सब कुछ होता है चैट शोज में, और चैट शोज दिन में होते ही कितने हैं भाई? 24 आवर्स हम लोग न्यूज दिखाते हैं, उसमें 1 घंटा चैट शो होता है, 2 घंटा होता है, उससे ज्यादा तो नहीं होता। हाँ या नहीं कलंदी? तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं सोचना। Yes, sir. Okay, sir. Thank you. Next, I invite Dhriti. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, my question to you is like when we talk about TV journalism, so people have this perception that the journalist or the news anchors working with TV, like TV channels, they always have the opinions which the TV channels have to represent and not their own opinions, like what is truth. So, what do you have to say about that? Because I really wanted to know from you. Very valid and very important question. हाँ, क्रेडिबिलिटी हम लोगों की खत्म हुई। गलती हमारी है, क्योंकि हमने न्यूज को न्यूज नहीं रहने दिया, व्यूज बना दिया है, और इसीलिए ये होता है। याद रखिए, हम लोग जजेस नहीं हैं, हम जज बिल्कुल नहीं हैं, हम वकील भी नहीं, हम किसी का सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं। हमारा काम सिर्फ इतना है, जब जहां जो हुआ है उसे दुनिया को बताते हैं, दैट्स इट। सच्चाई दुनिया को बताना और एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट को आईना दिखाना कि बॉस ये गलत हो रहा है। अगर एक लड़की शाम होना, अंधेरा होने के बाद या शाम होने के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकती है, उसे गुंडे छेड़ सकते हैं, उसको किडनैप कर सकते हैं, तो प्लीज आपको सरकार में रहने का, एडमिनिस्ट्रेशन में रहने का, पुलिस प्रशासन को कंट्रोल करने का कोई हक नहीं है। हमारा काम सिर्फ इतना है। तो ये क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है जो है, और बच्चों, इसे आपको दूर करना है। और ये तभी होगा जब आप फेयर होंगे, आप पक्षपात नहीं करेंगे, आप निष्पक्ष होंगे। हम छोटे छोटे जवाब इसलिए करें क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है जल्दी से। Thank you, sir. थैंक यू। Next up, we have Prabsimar, roll number 2140088. रोल नंबर क्यों बताया? So the name, I was not sure if I was pronouncing this right, so that is why. Alright. Good afternoon, sir. Very good afternoon. Sir, I wanted to ask a journalist is how much liberal How much? Sorry? regarding how much liberal regarding his reports. In the recent time, we have seen that the news has become a TRP game. The scams have evolved. The Mumbai scams, maybe the public have been evolved. We can say that the NDTV is showing something regarding Ravish Kumar recently had the TRPs that his own reports and the news was not being showed. Okay. How Okay. do you Okay. see that? It's got your point. Again, credibility. यही हमें नहीं करना है। ठीक है, होता है, हो गया, करने लगे हैं कुछ लोग, लेकिन ये जिम्मेदारी आप प्लीज। लेकिन ट्रस्ट मी, बहुत कम लोग ऐसे हैं, बहुत ज्यादा लोग नहीं करते। थैंक यू। And we have the last question from Chavi. Chavi, please.
Avi Manchanda. Avi. I'm not sure if she's here. Avi, you have raised your hand. Okay, I हो गया वंदना, नहीं क्यों कभी ने कुछ रिश्वत दी थी क्या कि मेरा सवाल पूछवा लेना? No, sir. Actually, she raised her hand, but it's okay. I think that was a mistake. It's okay, it's okay. It's okay. Oh, actually, she's speaking, but her mic is on mute. I think she's unaware of the fact. हाँ जी, madam. So let's end this question answer round here. So thank you so Thank much. you. Thank you so much, sir. On behalf of the college, I extend a vote of thanks to you. You spared your time from your busiest schedule, and it really meant a lot to us. Last but not least, I would like to request Dr. Priya Chandra ma'am, Head Department of Journalism and Mass Communication, to conclude the session. A very good afternoon to everyone. Namaskar, Syed Ansari ji. It's a matter of pride to be associated with India Today Group since so many years. We are extremely honored, blessed, and privileged to have Mr. Ansari with us, who graciously accepted our invitation and participated and gave us such an insightful session. We are extremely thankful to you, sir. Adding to what you said, I totally agree with you. Newspapers are their textbooks, and that's what we tell them in the class also. Newspapers read to write. Second thing, what we tell them. Unless and until they will not read, they will not be able to write. If we tell them to write about SD College, if they will not read about SD College, they will not be able to write about SD College. So these are the two things which we tell them. My special thanks to Mr. Andhare and Dr. Patil, who has always been very sportive, and he mentioned about the skill-oriented courses. I would like to mention that we have started new course, skill-oriented course, media and entertainment, and we would be looking forward for more such sessions, more such workshops. And I am sure children, they must have enjoyed your talk, your interaction. They were very excited to be online, in spite of we are having 3 functions in the college simultaneously. But they participated and they listened to you. Thank you so much. I'm extremely grateful to you. Thank you, sir.